प्रदूषण की वजह से बीमार होगी मैं। फिर यहाँ मुझे भर्ती करा। बस ऐसे चलती तो सांस चलता। तमिलनाडु पोल्यूशन कंपेयर टू दिल्ली पोल्यूशन आई। हम सब हर 3 सेकंड में एक सांस लेते हैं, मतलब 28,000 सांसें पूरे एक दिन में। पर कुछ शहर दुनिया के ऐसे भी हैं जहां पर सांस लेने जैसा मामूली काम भी अब मुश्किल में पड़ गया है। वायु प्रदूषण एक वैश्विक समस्या बन चुका है। चलो मैं आपको हिंट दे देता हूँ कि आगे हम किसकी बात करने वाले हैं। चारों ओर बढ़ता पॉल्यूशन, आसमान में फैला धुआं, पॉल्यूशन की मार झेलते लोग और काली चादर में लिपटी प्रकृति। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ भारत की राजधानी दिल्ली की। दिल्ली में प्रदूषण का स्तर अब भी काफी खराब श्रेणी में है। आज स्मॉग और फॉग की चादर से राजधानी ढकी हुई नजर आई। दिल्ली में प्रदूषण का कहर जारी है। दिल्ली में AQI 400 के पार पहुंचा है। बहुत खराब श्रेणी में पहुंची दिल्ली की एयर क्वालिटी। शुक्रवार को शाम को 4 बजे तक 24 घंटे का औसत AQI 380 हुआ दर्ज। धूल कर रहा काम 25 साल से मैं डेली वर्क कर रहा हूँ इस डिपार्टमेंट में, और स्वास्थ्य पर फर्क पड़ता है। आंखों में दिक्कत है, मतलब धूप में धूल में तो परेशानी तो होती है, फर्क तो पड़ता है काफ़ी। और जब धूल करता है, मिट्टी है, ट्रैफिक है, पोल्यूशन है, फेफड़े की बीमारी है, सांस लेने में संबंधी बहुत शिकायतें। थोड़ा गर्मी सी होती है मौसम में, दिखाई देने में थोड़ा धुआं होना होता है, सांस वास फूलती है तो दिक्कत तो होती है लोगों को। हमें भी परेशानी होती है सुबह सुबह निकलने में प्रदूषण के कारण से। तमिलनाडु सुरेश, நாங்கள் லாஸ்ட் ஒரு 5 டேஸாக ஆக்ரா அண்டு இப்போ இன்னைக்கு வந்து டெல்லி வந்திருக்கோம். இப்போ அக்ஷரம் டெம்பிள் வந்தோம். காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்லாம் ஒரு இன்டர்வியூக்காக வந்திருந்தாங்க. ரொம்ப குட் அப்ரோச், நல்லா அப்ரோச் பண்ணியிருந்தாங்க. இன்னைக்கு டெல்லியுடைய பொல்யூஷனுக்கும் தமிழ்நாடு பொல்யூஷனுக்கும் உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் என்ன அப்படின்னு பார்க்கல. டெல்லியில் வந்து பொல்யூஷன் அதிகமானதுக்கு காரணம் மேக்ஸிமம் இங்கே இருக்கக்கூடிய வெஹிக்கிள்ஸ் நான் பார்த்தேன். நிறைய வெஹிக்கிள் இருந்து வரக்கூடிய போக சர்வீஸ் மேக்ஸிமம் பண்ணுறதுன்னு நினைக்கிறேன். பட் தமிழ்நாட்டில் 15 இயர்ஸ்க்கு மேக்ஸிமம் உள்ள வெஹிக்கிளை மேக்ஸிமம் ஓட்டுறதுக்கு யோசிப்பாங்க. இங்கே ஒரு சில இடத்துல தான் ஓட்டுவாங்க. பட் ஆனால் இன்னைக்கு நிறைய வந்து பொல்யூஷன் ஆகிறதுக்கு காரணம் ஓவர் டிராஃபிக்கு, பழைய ஓல்டு வெஹிக்கிள்ஸ் தான் காரணம். இப்போ தமிழ்நாட்டில் மேக்ஸிமம் நம்ம இருக்கு, பட் அதிகமாக கிடையாது, எங்கேயோ ஒரு இடத்துல தான். அதே மாதிரி நிறைய டெவலப்மெண்ட், டெல்லி டெவலப்மெண்ட் ஆயிடுச்சு. தமிழ்நாட்டில் பார்த்தீங்கன்னா மக்கள் தொகை 8 கோடி மக்கள் தொகை இருந்தாலும் நேச்சுரலாக முடிஞ்ச அளவுக்கு இன்றைக்கி பாதுகாத்துட்டு தான் இருக்காங்க. ரொம்ப சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க. கண்டிப்பாக டெல்லியுடைய பொல்யூஷன் ரொம்ப அதிகம்னு வருஷம் நானும் நியூஸில் பார்த்துட்டு தான் இருக்குங்க. குறிப்பாக இப்போ தீபாவளி வரக்குள்ளலாம் நிறைய பொல்யூஷன் டெல்லியில் கிரியேட் ஆகும். பட் ஐ லவ் டெல்லி, ரொம்ப பிடிச்ச பிளேஸ். லாஸ்ட் 10 இயர்ஸாக விசிட் பண்ணுறேங்க. ஒவ்வொரு முறையும் டெல்லி டெவலப்மெண்ட் ஆகிட்டு தான் இருக்குது. பட் பொல்யூஷனுடைய காசு மாற்றுறது ஒன்றும் டெவலப்மெண்ட் ஆகலை. மக்கள் பீப்புள் வந்து கரெக்டாக இருக்கணும். ஏன்னா பீப்புள் வந்து பொல்யூஷன்ன்றது ஏர் பொல்யூஷன் மட்டும் இல்லைங்க. பாருங்கள், பார்க்கெல்லாம் அங்கே துப்பி வச்சிடுறாங்க. எல்லா இடத்துலையுமே மெட்ரோவில் கூட துப்பிடுறாங்க, எல்லா இடத்துலையுமே துப்புறாங்க. இந்த வந்து ஒரு ஹேபிட்டாட்டுங்க பார்க்க போகிறதுன்றது. பட் இருந்தாலும் அதுக்குன்னு அங்கங்கே டஸ்ட்பின் வச்சுருக்காங்க, அந்த டஸ்ட்பினில் போய் துப்பலாம் இப்படின்றது இல்லை. பட் நாம் அதிக நாட்கள் வாழணும் அப்படின்னா நாம தான் பாதுகாத்துக்கணும், நாம தான் சுத்தமாக வச்சுக்கணும், हाइजीनिक। औद्योगिक प्रदूषण दिल्ली के आसपास के कई बड़े औद्योगिक क्षेत्रों में फैक्ट्रियों और उत्पादन संयंत्र स्थित है जो हवा में खतरनाक रसायन और धुएं का उत्सर्जन करते हैं। इनका असर दिल्ली की वायु गुणवत्ता पर सीधा पड़ता है। निर्माण कार्य से प्रदूषण में तेजी से शहरीकरण हो रहा है। इस धुएं में PM 2.5 और PM 10 जैसे सूक्ष्म कण शामिल होते हैं जो स्वास्थ्य के लिए बेहद हानिकारक होते हैं। बस प्रदूषण की वजह से बीमार हो गए हम, इसी वजह से आ गए।
अन्ना क्यों आते। बीमारी का बहुत फर्क पड़ेगा। बीमारी तो बड़ों में भी हो रही, बच्चों में भी हो रही, सब जगह हो रही। बेटा मेरे लड़का रहे, मैं तो यूपी में रहूं, गांव में रहूं। हाँ, मैं तो यहाँ मिलन आई थी, आकर बीमार होगी। हाँ, प्रदूषण की वजह से बीमार होगी मैं। प्रदूषण की वजह से तो बीमार हुई मैं यहाँ, न मैं यहाँ नहीं रहती। दूसरे हॉस्पिटल में था प्रदूषण की, मेरी मैं यहाँ लगा के आई। अच्छा, उन्होंने दवाई सब अपने दौर से दी थी, इसके भी पैसे दे दिए हमने, सबके पैसे दे दिए। प्रदूषण की वजह से तो लगा के आई मैं से। पॉल्यूशन से तो ज़्यादातर सांस लेने में ही प्रॉब्लम होती है, और अभी हॉस्पिटल जाएंगे तो वहीं जगह पर दिखेगा, ऐसे यहाँ पर तो कोई कुछ दिखता नहीं है। रेगुलर बेसिस पे तो उतना पता नहीं चल रहा है, बट इंटरनल तो डैमेज हो ही रहा होगा, क्योंकि गर्मियों में उतना पता नहीं चलता। गर्मियों में IQ लेवल फिर भी ठीक रहता है, गाड़ियाँ गर्मियों में भी चलती है, फैक्ट्री गर्मियों में भी चलती है। मेन मुद्दा पराली का है, तो अगर हम पराली को कर पाए कुछ तो फिर शायद हम कंट्रोल कर पाएंगे IQ लेवल, वरना जैसे मेरा हाल दिन प्रतिदिन और बेकार ही होगा। बहुत सारी समस्या है, जैसे कि कई बार ऐसा होता है कि जैसे यहाँ पे खड़े हैं, दूर से गाड़ी आती है, वो नहीं दिखती हमें, है ना। और भी समस्या जैसे सांस लेने में तकलीफ होती है, मास्क लगा के चलना पड़ता है। और कई बार ऐसा होता है कि सांस लेने में दिक्कत होते हुए चक्कर भी आ जाता है, नाक वगैरह में भी दिक्कत होता है, और सांस लेने में दिक्कत होती है बहुत ज्यादा, छाती में दर्द होता है, ऐसे कुछ बहुत प्रॉब्लम होती है। आपके स्कूल में ऐसा कोई अवेयरनेस फैलाया गया जो? हाँ, टीचर है एक जो अवेयरनेस फैलाता है इन सब चीजों पे। बहुत है। क्या अवेयरनेस फैलाई? वो बताते हैं कि पॉल्यूशन को रोके कैसे, ये सब बताते हैं। कंपनी के जो स्मोक निकलते हैं, ये डायरेक्ट वाटर में ना जाके एयर में डाल देते हैं, इससे और स्मोक हो जाता है। यही सब चीजें ये पॉल्यूशन के बारे में बहुत चीजें। आपको अभी तक कोई स्वास्थ्य समस्या हुई नहीं, अभी तक तो नहीं, लेकिन आगे जाके अगर हो सकती है, पॉल्यूशन रहा तो हो सकती है। दिल्ली में वायु प्रदूषण के कई कारण हैं, जिसमें प्रमुख स्थान वाहनों से होने वाला पोल्यूशन। दिल्ली में वाहनों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। पोल्यूशन काफी है और प्रॉब्लम तो होती है हेल्थ में, जो भी है, क्योंकि गाड़ियाँ तो बहुत हैं। जितने गाड़ियाँ दिल्ली के अंदर है, इतनी साइड में भी और किसी महानगर में नहीं होगी। तो यहाँ पर पोल्यूशन से जो प्रॉब्लम है, एजेड लोगों को सांस लेने में है, कभी कभी आंखों में भी जलन होती है इन चीज़ों में। सांस लेंगे तो स्वास्थ्य को बिगड़ेगा। इसके लिए क्या कर सकते हैं, जो भी है यही है कि अगर कोई फैक्ट्रियाँ ऐसी हैं जिनसे पोल्यूशन होता है या कुछ है, तो इनको बंद कराना पड़ेगा, या थोड़ा सिटी से थोड़ा बाहर दूर रखना पड़ेगा। इससे ज्यादा क्या कर सकते हैं। बाकी गाड़ियों पे है, इनका भी पोल्यूशन चेक करें, जिससे कि आगे कोई प्रॉब्लम ना हो, गाड़ियों से धुआं निकलता है, ये भी है। बाकी और क्या। और यहाँ पर जो कौशाम्बी बस अड्डे के अंदर मैं मेरठ जाता हूँ, तो अक्सर यहाँ पे इतना पोल्यूशन हो रहा है, और ऑटो वालों ने तो बहुत बुरा हाल कर रखा है। और यहाँ पे चाहे आनंद विहार बस अड्डा हो, चाहे यूपी का कौशाम्बी बस अड्डा हो, तो पोल्यूशन इतना फैल रहा है बहुत ज्यादा। पराली तो फैलाती है, उसके अलावा जो ऑटो वाले हैं और ये बस वाले हैं, और जो दिल्ली बसें चल रही है दिल्ली की और यूपी रोडवेज की जो बसें चल रही है, उनसे बहुत पोल्यूशन फैल रहा है। यहाँ कुछ सरकारी नीतियाँ हैं जो दिल्ली में प्रदूषण को कम करने के लिए उठाए गए थे। दिल्ली सरकार ने वाहनों के प्रदूषण को कम करने के लिए ऑड इवन पॉलिसी, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, इंक्रीजिंग ग्रीन कवर, आवर पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन योजना शुरू की थी। साथ ही ऑड इवन और रेड लाइट ऑन और गाड़ी ऑफ जैसी नीतियां दिल्ली सरकार लेकर आई थी, लेकिन इसका कोई प्रभाव दिल्ली पर देखने को नहीं मिला। So Delhi government has come up with the concept of red light on and vehicles off. गाड़ी केजरीवाल सरकार ने लोगों की मदद से प्रदूषण के खिलाफ मुहिम का ऐलान भी किया है। दिल्ली भारत की राजधानी के रूप में नहीं बल्कि पूरे भारत का दिल भी मानी जाती है। लेकिन अगर दिल ही स्वस्थ ना रहे फिर देश का क्या होगा। दिल्ली हमारी राजधानी है, हमारा जीवन है। आइए इसे बचाने के लिए मिलकर काम करें।